میں پنجاب کا وزیر اعلیٰ رہا، تیسری بار وزیر اعظم بنا ہوں، لیکن میرے مخالفین تمام تر کوششوں کے باوجود مجھ پر کسی کرپشن، بدعنوانی، کک بیک، کمیشن کا کوئی ایک معاملہ الزام کی حد تک بھی سامنے نہیں لا سکے۔ کوئی سرکاری خرد برد نہیں ہے، کوئی کرپشن کا کیس نہیں ہے، نہ پہلے تھا 96 میں، نہ پیچھے تھا، نہ آج نہ کل ہوگا۔ تو نصیب اللہ بابر صاحب نے بھی بی بی سے پھر وہ اجازت نامہ ارینج کیا، نیچے نہیں مطلب رسک نہیں لیا انہوں نے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہرا 88۔ اس وقت تو ساری نظریں اوول کی کرکٹ گراؤنڈ پہ ہیں۔ پاکستان لگتا ہے انشاءاللہ تعالی ٹرافی لے کے گھر پاکستان کی ٹیم واپس پہنچے گی، سب دعا گو ہیں، لیکن ہم چلتے ہیں اس طرف، اس ایشو کی طرف جو بہت بڑا ایشو ہے پاکستان کے لیے۔ ناظرین آپ کو یاد ہوگا کل ہم جب پروگرام کر رہے تھے سعد رفیق صاحب کے ساتھ، منسٹر آف ریلویز، تو وہ سعد رفیق صاحب یہ فرما رہے تھے کہ بڑی زیادتی ہو رہی شریف خاندان کے ساتھ اور بلا جواز ان کو اس چیز میں گھسیٹا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب حکومت میں تھے پرائم منسٹر صاحب اور چیف منسٹر صاحب تو اس وقت کوئی بھی ایشو ایسا نہیں تھا، کوئی بھی خرد برد کی بات نہیں تھی، کوئی کرپشن کی بات نہیں تھی، تو یہ کیس ان کا بن رہا تھا اور وہ کہہ رہے تھے جو فلیٹس کا ایشو ہے اس کو سب کو بلا وجہ بلا جواز گھسیٹ کے لایا گیا، کرپشن کی تو بات ہی نہیں۔ جب ہم یہ بات کر رہے تھے ان کے ساتھ اور خواجہ صاحب اپنا کیس بنا رہے تھے تو اسی وقت ہمارے کولیگ ندیم ملک سما ٹیلی ویژن پہ ایک فارمر ڈپٹی ڈائریکٹر انعام الرحمان صاحب کے ساتھ وہ پروگرام کر رہے تھے، اور اس پروگرام میں انعام الرحمان صاحب کیا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے؟ وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ جو فلیٹس ہیں 1993 سے وہ شریف فیملی کے ہی ہیں، پھر یہ کہ حدیبیہ کے قطری خط نہیں ایک اور آف شور کمپنی سے التوفیق کیس میں پیسے دیے گئے، پھر یہ کہ نواز شریف بطور وزیر اعظم سب حدیبیہ کے جو بھی معاملات تھے اور قانون سے ہٹ کے معاملات تھے ان پر اثر انداز ہو رہے تھے۔ مثلا انہوں نے ایک بینک کو خلاف ضابطہ اجازت دی کیونکہ اس سے حدیبیہ کے لیے قرض لینا تھا، پھر یہ کہ حدیبیہ کے لیے جعلی اکاؤنٹس کھولے گئے نواز شریف اور شہباز شریف کی ایما پر، پھر یہ کہ یہ بہت ہی ناظرین اہم انکشافات ہیں، اور یہ بات میرا خیال ہے کہ درست ہوگا کہنا کہ اگر یہ انکشافات جو مبینہ جو چارجز ہیں اگر یہ جی آئی ٹی کے سامنے آتے ہیں لے کے انعام الرحمان صاحب، تو اس کے بعد کیس جو ہے وہ بڑا زور پکڑے گا شریف خاندان کے حوالے سے ان کے خلاف۔ تو یہ ہم مبینہ چارجز کہہ رہے ہیں کیونکہ ظاہر ہے یہ تو ابھی باتیں ہیں، یہ تو آنے ہیں، جی آئی ٹی کے سامنے بات آنی ہے، پروو ہونی ہے چیزیں، لیکن انعام الرحمان صاحب جو باتیں کر رہے ہیں وہ اہم باتیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے تو دستاویزات بھی دکھائے، انہوں نے ندیم کے پروگرام میں بھی دکھائے اور ہمیں بھی انہوں نے دستاویزات بھیجے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، تو کافی تفصیل میں انہوں نے کل بات کی اور انہوں نے یہ بار بار کلیم کیا کہ مجھے اگر بلائیں گے جی آئی ٹی تو میں پاکستان پہنچوں گا۔ اب دیکھیے کب آتے ہیں جی آئی ٹی، ان کو کب بلاتی ہے، لیکن ہم نے سوچا کہ یہ جو اتنی کلیمز کر رہے ہیں، جو اتنی باتیں کر رہے ہیں، ہم ان کو بلائیں اور ان سے ذرا پوچھیں کہ جی آپ تو یہ کہہ رہے ہیں لیکن شریف خاندان کا موقف کچھ اور ہی ہے۔ تو ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں انعام الرحمان صاحب، بہت شکریہ انعام صاحب ہمیں جوائن کرنے کا۔ تھینک یو۔ انعام الرحمان سحری گزارش کر رہا ہوں اور آپ کے پروگرام میں روبرو پیش ہوں، ارشاد فرمائیے۔ جی انعام الرحمان صاحب یہ پہلے بتائیے گا کہ آپ کو اتنے سال ہو گئے لندن گئے ہوئے، تو آپ کو کل کیا سوجھی کہ یکدم آپ نے کہا میں ٹی وی پہ آؤں اور یہ سب باتیں کروں؟ بہت شکریہ زہرا جی، مجھے نہ کوئی شوق تھا نہ کوئی چانس ہی ایسا بن رہا تھا۔ میں پچھلے 17 سال سے یہاں پہ بما فیملی اپنے مقیم ہوں، جب سے انہی تفتیشوں کی بنیاد پہ یا اس کو بیس کرتے ہوئے 1997 میں نواز شریف صاحب نے ہمیں بس یکدم گھر بھیج دیا تھا، تو ہم صبر شکر کر کے 4 سال انکوائریاں بھگتتے رہے وہاں پہ، اس کے بعد پھر چلے آئے جب ایوری تھنگ واز کلیئر فار اس۔ تو یہاں پہ یہ ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ کنہوں نے ریفرنس دیا ان کو، تو لیکن میرے پاس جو ڈاکومنٹس ہیں وہ اور بھی بہت سارے آفیسرز کے پاس موجود ہوں گے۔ اچھا تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کو کانٹیکٹ کیا ندیم ملک صاحب نے، یہ نہیں کہ آپ نے
कहा कि मैं अवेलेबल हूँ। अच्छा ठीक, यू आर राइट। ये उन्होंने मेहरबानी की, किसी मेहरबान ने उनको कहा होगा कि हम भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमसे भी कुछ पूछा जी, कि कोई मेहरबान जो जानते होंगे ये केस को, तो थोड़ा सा बताइएगा। आपने भी फरमाया कि 1997 में आपको प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने निकाला, कोई 800 लोग थे, उसमें करप्शन चार्जेस आप पर भी लगाए गए। आपने कहा 4 साल हमने भुगता है केस को, तो क्या थोड़ा सा बताएं कि आपने क्या है उसके खिलाफ कोई आपने जाके पिटीशन दायर की, क्या हुआ आपके साथ? जी, वो चलिए अब वो मौका तो नहीं इस बात का, चूंकि वो गए वक्तों की बात है। ये 1997 में जब ये तशरीफ लाए अपने वज़ीर आज़म मौसूफ, तो बस जैसे होता है हमेशा हर हुकूमतों में कि वो उनके जुगादरियों ने और उनकी वो जो टीम साथ लेके आए थे, वो जो वो जो पुराने को ख्वाजा ज़हीर थे, को ये हसन वसीम अफजल, हर की कोई ना कोई वजह थी ज़ाहरा जी। हसन वसीम अफजल जो सैफुर रहमान के साथी थे उस वक्त, वही उन्होंने सब कुछ किया। बेसिकली उनके ब्रदर इन लॉ, उनका नाम था जावेद ज़िया, एक ही ब्रदर इन लॉ थे। उनको हमने करप्शन के इल्ज़ाम में बाकायदा FIR दर्ज करके हमने उसकी तफ्तीश की, गिरफ्तार किया, 6 महीने जुडिशल जेल में रखा उसको। तो वो उनको एक चांस मिल गया फौरी तौर पे बदला लेने का। तो वो ज़ाहिर है उन्होंने फिर कुछ ना कुछ करना था। तो मुमकिन है नवाज शरीफ साहब को हमारा नाम याद न भी होता। रहमान मलिक साहब चूँकि हमारे थे जिसे कहते हैं कि सरबराह, और उसके बाद फिर नसीरुल्लाह बाबर साहब, उसके बाद सब लोग थे बीच में। लेकिन उन्होंने फिर मुझे रहमान मलिक साहब को और एक हमारे साथ जिन लोगों ने इनकी तफ्तीश की, ये भी आप ये रिकॉर्ड पर रखिए। फॉर एग्जांपल एक डिप्टी डायरेक्टर साहब थे कस्टम से आए हुए, वो जाफरी साहब शायद उनका नाम था। चूँकि कस्टम की इनकी तमाम जितना वो स्क्रैप आता था उसकी तफ्तीश उन्होंने की थी, लिहाजा वो भी हमारे साथ 83 ऑफिसर। ये वसीम अफजल साहब का जो कह रहे हैं, ये वसीम अफजल साहब वो तो नहीं है जो बाद में नैब में गए, ये वो तो नहीं है? जी वही, उस वक्त नैब इन्होंने बना दिया था ना, सैफुर रहमान का नैब उस वक्त बन गया था। तो ये तो बाद में मुशर्रफ साहब के साथ नहीं गए थे वसीम अफजल साहब? ये तो फिर अपने बदलते रहते हैं अपने चौगे, लेकिन क्या कहा जा सकता है, ये वही है ना जी? वही, यू आर राइट, यू आर राइटली पॉइंटेड आउट। जी। अच्छा, तो फिर आप क्या केस लेके सुप्रीम कोर्ट में गए, तो क्या पहली मर्तबा आपने दायर किया ये केस जिसमें कि आपने ये मटेरियल इस्तेमाल किया जिसका कल आप जिक्र कर रहे थे, जो आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा किए? जी, ये हुआ ये ज़रा जी कि इन्होंने जब हमें भेज दिया तो ज़ाहिर है वो जो रूटीन की कार्रवाई चलती है डिस्मिसल के बाद, वो इन्होंने एक इंक्वायरी डाली, वो भी क्लियर हो गई, दूसरी डाली वो भी क्लियर हो गई, तीसरी डाली वो भी क्लियर हो गई। इनके लीगल डिपार्टमेंट्स ने भी क्लियर कर दिया। वो उस वक्त तो मैं ज़ाहिर FIA में नहीं था, मैं तो फैसलाबाद में अपने घर चला गया था। तो बाद में कोई डायरेक्टर साहब थे, उन्होंने भी इनको लिख के भेजा, वो क्लियर भी हो गई, मुझे ECL से भी निकाल दिया, एवरीथिंग वाज ओके। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे 2001 में आया था। आप लंदन आए थे 2001 में? जी, मैं मैनचेस्टर चला, पहले लंदन में। जी, आपने फरमाया था, आपने ये भी कहा था कि मैं सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की थी 2000 में, जब मैं तमाम डॉक्यूमेंट्स लेके गया था, तो ये उसी वक्त की बात है? मैं गुजारिश करता हूँ, अब ये भी एक साइड पहलू में एक ये भी सुन लीजिए। जब मैं सर्विस ट्रिब्यूनल में गया तो बदकिस्मती मेरी ये कि वहाँ पे जो पहले मुझे नहीं था, चूँकि मैं फैसलाबाद से डायरेक्ट रात आके तो सुबह पेश हो गया सर्विस ट्रिब्यूनल में। जब वो बाद में मुझे पता चला कि वो जो एक साहब उनमें जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे जो बैठे हुए थे जिन्होंने फैसला करना था, वो सलमान फारूकी साहब के कज़न थे, उनके बहनोई थे या उनके समधी थे या कोई ऐसा था, वो भी फारूकी साहब ही थे। अब सलमान फारूकी साहब मुझे रात की तारीखियों में जो है ना वो मुझे मेरे क्वेश्चनर्स के जवाब देते रहे थे मोटरवे स्कैंडल में, तो उनको तो पता था ज़ाहिर है वो वहाँ से वो वंडाटा जमा हो गया। खैर उन्होंने मुझे वहाँ से डिसमिस कर दिया, फिर मुझे सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट में मेरी जो पहली उन्होंने एडमिट की थी, उसमें जस्टिस मुनीर उस वक्त होते थे, जस्टिस शेख मुनीर, उन्होंने वाज़े तौर पे लिखा कि इस आदमी को टारगेट किया गया है चूँकि इन्होंने मोटरवे की और ये हुदैबिया इंजीनियरिंग की, हुदैबिया पेपर मिल्स की और दूसरी इनकी इत्तेफाक फाउंड्री से रिलेटेड कई मामलों की इन्होंने तफ्तीश की थी, इस वजह से इनको टारगेट किया गया है। उन्होंने एडमिट कर ली, लेकिन वो ज़ाहिर है फिर ये चूँकि ये लोग हुकूमतों में थे, वो उसको लगने ना दिया वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में। अल्टीमेटली फिर मैंने वो 2000 में एक एप्लीकेशन डाली थी
تو وہ اس کے ساتھ میں نے اپنا وہ سارا ریکارڈ جو ہے نا وہ سارا لگا دیا تھا، جو کہ اب آپ کے سامنے بھی ہے اور بھی بہت سارے لوگوں کے پاس ہے، یہ کوئی سیکرٹ یا تو پھر ہوا کیا جی؟ آپ نے ریکارڈ لگا دیا تو کیا ہوا اس کے بعد؟ میں فرینکلی مجھے ابھی تک بھی نہیں پتا، چونکہ میں چلا آیا وہاں سے۔ کیوں آپ چلے کیوں آئے؟ آپ چھوڑ کے کیوں چلے گئے پاکستان؟ ہاں، میرا چھوٹا بیٹا جو ہے بلڈ کینسر کا مریض تھا، میں انتظار کر رہا تھا پچھلے 2-3 سال سے، یہاں کی اپوائنٹمنٹس تھیں میرے پاس انگلینڈ کی، تو وہ پھر جب انہوں نے ECL سے نکالا مجھے، نیب والوں نے، انہوں نے کہا جی کہ آپ کلیئر ہے، باقی یہ نوٹیفکیشن ہوتی رہیں گی، آپ جائیں، یہ لے پڑا ECL۔ جب انہوں نے ECL کا مجھے ایگزٹ کا دیا تو میں اپنے آرام سے بڑے اس کے 1 مہینے کے بعد میں یہاں پہ آ گیا۔ اچھا ناظرین، سحری صاحب کے ساتھ ہم گفتگو جاری رکھتے ہیں، ابھی ہم بریک لیتے ہیں، پھر واپس آئیں گے۔ اس کا میچ ہے ایریل ورسز ناممکن داغ۔ اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑکتی، پھول بھی کھل اٹھتے ہیں کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے، قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں اور سر بلند ہوتی ہیں۔ میری قوم اس دنیا میں خوب سر بلند ہو، یہ میرا مسئلہ ہے، جس کے حل کی خاطر ارباب اختیار کے ناقص فرمانوں اور فیصلوں پر میرا ہاتھ خود بخود قلم کی جانب بڑھ جاتا ہے اور میں لکھتا ہوں اختلافی نوٹ۔ دیکھیے پروگرام اختلافی نوٹ جمعہ سے اتوار رات 7:03 پر صرف 24 نیوز HD۔ تجربہ بھی، سوچ وچار بھی، جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی، اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث DNA میں، پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر، ہوتی ہے گہری سوچ بچار، ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ، یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈیبیٹ نیوز انالیسس DNA۔ ہم عوام ہیں یا رعایا؟ ہمارے حقوق کی پامالی آخر کب تک؟ ارب پتی حکمران اور فاقہ کا شواب، کیا غربت ناقابل حل مسئلہ ہے؟ سیاست بینک اکاؤنٹس کی غلام کیوں؟ عوامی سیاست کے زمانے کیا ہوئے؟ سیاست برائے عوام یا برائے دولت؟ ہماری زندگی سے جڑے سوالوں کے جواب دیکھیے پروگرام سچویشن روم میں۔ دیکھیے پروگرام سچویشن روم جمعے سے اتوار شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر۔ آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں، تکرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں، بگڑتی ہے، لیکن ہم تلخی سے نہیں، مکالمے سے بات بڑھائیں گے۔ ہم ہر اہم خبر کی تہ تک پہنچیں گے، لیکن ثبوت کی روشنی۔ ہم ہر بات کریں گے، لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ۔ نسیم زہرا 8 میں دیکھیے پروگرام نسیم زہرا ایٹ 8 جمعے سے اتوار رات 8:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر۔ لکھتے رہے جنوں کی حکایات خون چکام، قلم اور اسکرین تک کا طویل تجربہ کیا، ایک بھرپور صحافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام
मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7 बजे। वेलकम बैक नाजरीन, आप कह रहे हैं कि आपने सुप्रीम कोर्ट में वो तमाम कागजात जो मुबैना तौर पे आप फरमा रहे थे कि ये बताते हैं कि अकाउंट्स थे वो फेक अकाउंट्स थे, हुदैबिया पेपर मिल्स के लिए इस्तेमाल किए गए, और आपने कल बैंक का भी नाम लिया, ये तमाम जो आपने डिटेल्स हैं ये सारे वहाँ पे मैंने, यू आर राइट, मैंने अपने डिफेंस में जमा करवाए थे जनाब। ये मेरी तफ्तीशी हैं, तो उसकी वजह से मुझे उन्होंने किया गया कि चलें लग जाएगी तो काम आ जाएंगी, लेकिन वो मेरी वहाँ पे यूँ समझे कि किस्मत में नहीं था कि वो जल्दी सुनवाई होती। अच्छा, तो क्या होता है इस सूरत में कि आपका केस अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है या बंद हो गया, क्या हुआ? या आपके तमाम जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी रखे हैं? मुझे नहीं लगता कि अभी कोई उसको फॉलो कर रहा होगा, क्योंकि उसके बाद में मेरे घर में कोई अगर कोई नोटिस आया भी, जो कि मैं तो अपनी फैमिली के हमरा आ गया था, तो मुझे पता ही नहीं, वो चला गया होगा निकाल के। अच्छा, ये बताइएगा जी, आप फरमा रहे थे इनाम साहब कि ये इससे पहले भी आपने केस दायर किया, आपने कहा इससे पहले भी डॉक्यूमेंट्स, जब आपने केस पूरा बना लिया और जब आपने ये तमाम जो मुबैना चार्जेस थे, फिर आपने कहा कि आप इसको कहाँ लेके गए? आपने कोई FIR कटवाया, कुछ चालान किया, या बस आपने डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट में अपने केस के लिए इस्तेमाल किए? ना, वो तो सुप्रीम कोर्ट में तो वो चले गए, लेकिन ना ये मैंने कॉपियाँ ही वहाँ पे जमा करवानी थी। असल फाइल्स तो महकमे के पास ही होती है, वो FIA के पास ही थी, और बल्कि वो तो केस हमने मेरा ख्याल है कि दिसंबर की किसी 12-14 तारीख को 1995 में ही हमने मुतल्लिका कोर्ट में जमा करवा दिया। कौन सा कोर्ट? और जी वो बैंकिंग कोर्ट थी रावलपिंडी की, तो वहाँ पे हमने जमा करवा दिया। उसके बाद फिर हमारा काम खत्म हो जाता है, वो कोर्ट का एक अलग प्रोसीजर प्रोसिक्यूशन प्रोसेस वो शुरू होता है। बाद में चूंकि ये लोग आ गए हुकूमत में, तो ज़ाहिर है फिर कहाँ चला होगा वो तो बैंकिंग काउंसिल में ये केस चला, साल भर आपने कहा चला, और उसके बाद वो बंद हो गया होगा? हो गया होगा, रिकॉर्ड्स में होगा अभी भी। जी। अच्छा, तो आपके दौर में फिर FIR वगैरह तक नौबत नहीं आई, केस आपने इसको दायर कर दिया कोर्ट में? नहीं, ना FIR कटी है, उसका नंबर भी आप देख लीजिए, 12/94। ये नवंबर 1994 की बात है। नवंबर 1994 में इंक्वायरीज के बाद FIR कटी, फिर FIR के बाद उनकी गिरफ्तारियां भी हुई। शहबाज शरीफ साहब 6 महीने अडयाला जेल में भी रहे बेचारे, शायद, या मुझे शक पड़ता है, लेकिन गिरफ्तार तो हमने कागजों में गिरफ्तारी उसकी मौजूद थी। एनीहो, आगे चलते हैं। अब मोटी बात अगर करें कि जी वो हुकूमत में तो नहीं थे, हुकूमत में अपोजिशन दूसरी गवर्नमेंट थी, तो उनको उठाया और फिर कहते हैं ना जी अंडर ड्यूरेस, जैसे इसहाक डार साहब भी कहते हैं मुझसे ज़बरदस्ती लिखवाया गया अंडर ड्यूरेस, जो मैंने एफिडेविट लिखा है। तो आपने शहबाज शरीफ साहब वगैरह को उठाया, उनसे जो बयान वगैरह लिए वो अंडर ड्यूरेस ले लिए होंगे? नहीं, आप बहुत अच्छी आपने बात की और बड़ी तफ्तीशी बात की, जो कि JIT मुमकिन है मरे से करे, कि हमने उनका बयान जो है ना वो रिकॉर्ड में रखा ही नहीं। हमने सिर्फ उन्होंने रूटीन में जो भी कुछ हो सका वो हो सका, वो उन्होंने धमकियाँ शमकियाँ दी हमारे ऑफिसर्स को, हमारे स्टाफ को, जो हम हायर अफसर नसीरुल्लाह बाबर साहब के नोटिस में ले आए थे। तो लेकिन आप ये चीज़ ध्यान में रखिए, हमने जो केस बनाया था वो हबीब बैंक AG ज्यूरिच डेविस रोड वाला और जो बैंक ऑफ अमेरिका वाले, और वो जो उनकी बुनियाद के ऊपर हमने केस बनाए थे, और जिनके तहत ये जाली अकाउंट खोले गए। इसीलिए बैंकिंग कोर्ट में दिया ना कि जाली अकाउंट जावेद कियानी ने खोले थे, और उन दोनों आदमियों के बाद में हम उन आदमियों से रब्ता करने के लिए जब उनके एड्रेस पे गए, ना वहाँ पे कोई आदमी थे, ना वो एड्रेस ही होता था। और इन्होंने हमें रिटर्न, मेरे पास उनकी कॉपी मौजूद है उनके रिटर्न स्टेटमेंट्स की, जो उस वक्त के मैनेजर वो जो डेविस रोड हबीब बैंक के सैफुर रहमान वगैरह थे, उन्होंने लिख के दिया। उन्होंने कहा जी कि हमने कभी अपने इन क्लाइंट्स को यहाँ पे इतनी भारी रकूम इनकी आती रही, हमने नहीं कभी इनको यहाँ पे देखा, ये यहाँ पे कभी नहीं आए, कभी इन्होंने ट्रांजेक्शन नहीं की बाई हैंड, कभी इन्होंने बाई हैंड पैसे जमा नहीं कराए, चेक नहीं जमा कराया, लेके नहीं गए। हमारे सारे कागजात जो है ना वो जावेद कियानी लेके जाते थे, बस हमें दूसरे दिन से वो आ जाते थे कि ये पैसे इधर से इधर। इनाम साहब ये बताइएगा, सर ये बताएं कि अगर ये सब चीज़ें हैं तो
آپ کہہ رہے ہیں یہ تو مبینہ طور پہ کافی بڑا کلیم ہے کہ جی اور ایکیوزیشن ہے, آپ کہہ رہے ہیں ڈاکیومنٹیشن ہے, تو کیا پاکستان کا سسٹم اتنا ہی گیا گزرا ہے کہ کسی پوائنٹ پہ بھی نہیں اس کو اٹھایا گیا؟ اب دیکھیں آپ بات کر رہے ہیں کوئی تقریباً 20 سال پرانی, 22 سال پہلے کی, بیچ میں ایک ملٹری رولر بھی آئے جنرل مشرف, جنہوں نے ان کے ساتھ کافی آپ کو معلوم ہے جیل میں بھی ڈالا, ان کے گھر کو بھی قبضے میں لے لیا, پراپرٹی وغیرہ کو. تو انہوں نے اگر یہ سب ڈاکیومنٹس ہیں تو انہوں نے کچھ کیا کیوں نہیں اس کے ساتھ؟ یہ اس سے پہلے ڈاکومنٹس مجھے شک ہے. اب یہ 97 کی بات ہے, چونکہ ہم تو نوکری میں نہیں تھے, ہم تو گھر چلے گئے, لیکن مجھے شک ہے کہ یہ بعد میں سارا کچھ منور کر لیا گیا. یہ جو بینکنگ کوڈ والے بتا سکتے ہیں یا یہی اپنی صفائی میں پیش کریں. جو ملزم میرے پاس وہ ہم اسے کہتے ہیں, آپ بھی CRPC کی 173 کے تحت فائنل رپورٹ بینک میں دی جاتی ہے, میرے پاس اس کی کاپی ہے. اور وہ صرف میرے پاس ہی نہیں بلکہ رحمان ملک صاحب نے وہ تمام میڈیا کو تقسیم کی تھی 2001 میں. ان میں سے ایک کاپی ڈیلی ٹائمز لندن میں بھی آئی تھی اور انہوں نے بھی وہ چھاپے تھے. اور وہاں پہ ابھی بھی راولپنڈی میں میرے سابق کولیگ, میرا خیال ہے کہ وہ ملک ممتاز صاحب ابھی بھی وہاں پہ ہوں گے, یہ ساری فائلوں کی کاپی ان کے پاس بھی ہوگی. نام لے بیچارے ملک ممتاز صاحب کی شامت آ جائے بھی ذرا بہتر نام نہ لیں. یہ بتائیں کہ یہ عامر عزیز صاحب جو ہیں, عامر عزیز صاحب جو جب جنرل مشرف کے دور میں یہ اس کیس پر کام کر رہے تھے اور جب JIT میں ہیں, تو انہوں نے آپ کو نہیں کانٹیکٹ کیا, یعنی کہ انفارمیشن کے لیے؟ اگر آپ کہہ رہے فائل موجود نہیں تھی تو, اور فائل کے بارے میں پتہ ہوگا اور لوگوں کو اس وقت, تو انہوں نے کانٹیکٹ نہیں کیا آپ کو؟ یہ عزیز صاحب کے بارے میں زیادہ تو نہیں کہہ سکتا, لیکن مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ وہ ڈبل گیم اس وقت بھی کرتے رہے. یہ سارے جتنی بھی میری ایک ہیں ججز اینڈ جنرلز ان پاکستان, اس کے والیوم 1 اور 2 میں وہ تمام ڈیلز اور کاغذات کی کاپیز اس میں لگائی ہیں جن کے تحت یہ جدہ میں گئے تھے, سعودی عرب گئے تھے. تو اس وقت میں نے میرے پاس اس کی کاپی ہے. میں نے ایک لیٹر پرویز مشرف صاحب ایز اے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے یا جو بھی تھے, میں نے ان کو باقاعدہ ان کے سیکریٹریٹ میں ریسیو کروائی جا کے بائی ہینڈ, اور بیچ میں لکھا کہ میں یہ تفتیشوں کے بارے میں جانتا ہوں اور میں نے یہ آپ مجھے یہاں پہ بلائیے. انہوں نے وہ درخواست تو میری منظور نہیں کی. بعد میں مجھے نیب والوں نے, جو اس وقت کا نیب تھا, انہوں نے کوئی جنرل صاحب تھے کہ شاہد صاحب تھے یا انہوں نے مجھے شاہد عزیز صاحب, ہاں انہوں نے مجھے شاید ایک بار گھر سے بلوایا تھا. وہ پھر مجھے یعنی لندن سے بلوایا تھا, مانچسٹر سے. میں اس وقت فیصل آباد میں تھا, لیکن یہ تو 2001-2003 کی بات ہوگی نا, آپ یہی؟ نہیں, یہ 2000 کی بات ہے, یہ اس سے پہلے کی بات ہے, میں ان کے باہر جانے سے پہلے کی بات ہے اس وقت. حالانکہ اس وقت 2000 کے ارلیز کی اس کی بات ہے کہ میرے پاس وہ کاپیاں موجود ہے کہ میں نے جب ان کو اپلائی کیا. وہ آپ کے پاس کاپی ہے اس خط کی جو کہ آپ نے جنرل مشرف کو لکھا 2000 میں؟ جی میرے پاس ہے. جی, اور اس خط میں کیا لکھا آپ نے؟ جی میں نے یہی لکھا کہ میں تفتیشوں کو سارے کو اچھے طریقے سے جانتا ہوں, میرے ساتھ انہوں نے زیادتی کی ہے. کون سے کیسز کی بات کی آپ نے؟ جی کہ مجھے بلا کے ایک بار سنیے تو صحیح. میں ممکن ہے کہ قوم کے بہت سارے فائدے کی باتیں نکل آئیں. وہ خط میرا خیال ہے پرویز مشرف صاحب تک نہیں پہنچنے دیا گیا, ادروائز مجھے نائب والوں نے بلا کے ایک بار وہ خالد سراج وغیرہ کی جو تفتیشیں وغیرہ لاہور میں ہم گئے ہیں FIA کی ٹیم کے ساتھ مل کے وہاں پہ کیا. وہ 2-4 پیشیاں ہوئیں اس وقت. یہاں سے کوئی عصمت صاحبہ ہوتی تھی نیب میں, کوئی بینکنگ کو ڈیل کرتی تھیں یا وہ لیگل تھیں, تو ان کے ساتھ ہم وہاں پہ تفتیشوں کو 2-3 پیشیوں میں ہوا. اس کے بعد انہوں نے کہا جی جب آپ کو ضرورت ہوگی آپ کی تو پھر بلائیں گے. پھر میں اپنے گھر چلا گیا. 2000 کی بات ہے, 2000 کی بات. 2000 کی بات. اور عامر عزیز صاحب اس میں کوئی انوالو تھے, ان کا کوئی نام آیا یا نہیں آیا اس وقت؟ نہیں, میرے اس سے نہیں گزرا کہ ان کا کوئی نام آیا ہو. جی کیونکہ دیکھیں نا آپ جو بات کر رہے ہیں یہ پھر وہ دور ہے جب شریف خاندان نے ایک اپنا معافی نامہ یا جو بھی اگریمنٹ کی اس وقت کے ملٹری رولر جنرل مشرف سے. اس کے بعد ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ سعودی عربیہ روانہ ہو گئے تھے شریف خاندان کے تمام لوگ, اور یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ اس وقت شہباز شریف صاحب نے نہیں جانا چاہا تھا, لیکن بہرحال پھر پورا خاندان یہاں سے روانہ ہو گیا تھا. ہم ناظرین بریک لیتے ہیں اور یہ گفتگو ہم انعام الرحمان صاحب کے ساتھ جاری رکھتے ہیں. اسٹے ود اس.
इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनून की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात पे जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दमाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी
वैसी भरती। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है, उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। बड़ा अहम इंटरव्यू बात कर रहे हैं हम इनाम और रहमान सहरी साहब के साथ। आप ये देखें कि हमने इनसे जब गुफ्तगू की तो उन्होंने ये फरमाया कि हमने कहा आप अपना वक्त कैसे गुजारते हैं, क्या वहाँ करते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं लिखता हूँ और उन्होंने अपनी वेबसाइट बताई inamsehri.com के नाम से। उन्होंने कहा कि उस पर बहुत डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनके हैं, बड़ी इन्फॉर्मेशन है, कुछ किताबें उन्होंने कहा एक जजेस और जनरल भी लिखी। और आप उनकी वेबसाइट पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि जनरल्स के हवाले से भी बहुत से उन्होंने आइटम्स डाले हैं जहाँ उनका कहना ये है, ख़बरें ऐसी डाली हुई हैं जहाँ लिखा है कि जनरल्स भी करप्शन में इन्वॉल्व हैं और भी जजेस के हवाले से भी मुबैना तौर पे बहुत सी बातें ये करें। तो इनकी अगर आप देखें वेबसाइट तो लगता ये है कि जैसे उन्होंने कल जिक्र भी किया कि उनको पाकिस्तान में करप्शन के हवाले से एक जेन्युइन एक कंसर्न है। तो लगता नहीं इनकी बातों से, और जो इन्होंने अपना आपने सुनी भी इनकी बात कि ये खुद सामने नहीं आए, इन्होंने खुद नहीं क्लेम किया, नदीम मलिक साहब ने इनको कांटेक्ट किया किसी इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे। तो ये और इन्होंने कल ये भी कहा कि शरीफ ख़ानदान से इनको कोई बैर नहीं, ये नहीं कि कोई किसी को टारगेट कर रहे हैं, एक जनरल करप्शन के हवाले से जो इनको समझ में आता है वो इस पर बात करते हैं, जो उनका एक्सपीरियंस है। इनाम और रहमान साहब ये बताइएगा कि आपने अभी हम बात करते हैं फ्लैट्स के हवाले से, और अगर आपकी जो आपने जब इंक्वायरी वगैरह की तो फ्लैट्स कोई फिगर किए उसमें या नहीं किए, लेकिन उससे पहले हम वहाँ जाएं। आपने एक जिक्र किया, आपने आमिर अजीज़ साहब की बात की, आपने कहा डबल एजेंट, बड़ी भारी बात आपने कह दी। किस प्रूफ के बेसिस पे आपने कहा? आपने कहा शायद वो डबल एजेंट है। नहीं, एक तो आमिर अजीज को आप तारक अजीज साहब के साथ तो नहीं मिला रहे? नहीं जी बिल्कुल ही, मैं तो आमिर अजीज साहब जो JIT के अब मेंबर हैं। नहीं, इनका मेरे साथ कभी कंसर्न नहीं रहा। आई एम सॉरी, मैं तारक अजीज की बात कर रहा हूँ जो उस वक्त परवेज मुशर्रफ साहब के साथी थे। इनसे कभी मेरा ना कंसर्न, ना कभी मेरे कागजों में ना नेवर, कभी सुना भी नहीं। ठीक नेवर, सॉरी फॉर दैट। अच्छा ठीक है जी। अच्छा, आपने क्लैरिफाई कर दिया। फ्लैट्स पे आते हैं। आपको मालूम है कि जो पनामा केस है JIT, सो एट द कोर वो हैं फ्लैट्स, जो लंदन के फ्लैट्स है। आपकी इंक्वायरी में उस वक्त वो फिगर किए, उस वक्त कुछ पता था कि उनके पास फ्लैट्स हैं या नहीं हैं? बिल्कुल, उस वक्त ये बातें होती थी। ये किस्सा मेरे एक और कुलीग के जिम्मे था, फ्लैट्स की सारी वो तफ्तीश करना और हर चीज़। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो शरीफ बरादरान की तमाम जितनी ये रेमिटेंसेस और ये जितने भी इनके फॉरेन एक्सचेंज के ज़रिए पैसे बाहर जाने, अंदर आने, ये FEBC वगैरह, ये सारा बेसिकली बाहर की वो जो 3-4 कंपनियां, उस वक्त ये मैंने नेस्कॉल, ये दूसरे नाम नहीं सुने, मरीम साहबा वाले, ये बाद में आए होंगे हमारे बाद। उस वक्त वो जो एक चैंड्रॉन कंपनी और एक इनकी ये जो शैमरॉक कंपनी, उस वक्त ये दो चीज़ें ये ओवरसीज थी, शैमरॉन और शेड्रॉन आप कह रहे हैं? जी, ये ओवरसीज की, ये सारी न्यू जर्सी में और ये जो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड वगैरह में जो हम करते हैं, जिनका ये पनामा उसमें जिक्र है, ये वहाँ पे इन दोनों की ये कंपनियां थी, दोनों कंपनियां वहाँ पे थी। और एक बात, मेरे पास उन डॉक्यूमेंट्स की कॉपी मौजूद है मेरी फाइल में कि जिसके तहत 3 बार कम से कम, ये जो मेरे पास वो 3 डॉक्यूमेंट तो ऐसे हैं कि वो मुख्तलिफ के जनवरी 1995 में, फरवरी 1995 में, फिर जुलाई 1995 में, कोई जिसे कहते हैं कि लाखों ही करोड़ों ही डॉलर जो है ना वो बाहर अलाइड बैंक की शायद था उस वक्त, अलाइड बैंक लंदन की एक ब्रांच बनती है, वो अलाइड बैंक को ट्रांसफर हुए हैं पैसे। ये आप एक मिनट, आप फरमा रहे हैं इनाम और रहमान साहब, बहुत आप कह रहे हैं करोड़ों डॉलर की बात कर रहा हूं मैं, प्लीज जी।
जी जी, ये उस वक्त वहाँ पे गए हैं, ये अलाइड बैंक में लंदन वाली ब्रांच में, उसके बाद से उनकी डिस्पोजल का हमें नहीं पता, चूंकि वो शमराव का अकाउंट था, ये ध्यान में रखिए। वहीं से वो शमराव के अकाउंट से और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इनके चले होंगे और उन्हीं में से ये मेयर फ्लैट्स की भी की गई होगी। ये हमारे पास डायरेक्ट लिंक आप नहीं कह रहे हैं होगी, आप कह रहे हैं शायद आपको लेकिन पैसे वहाँ गए हैं, लेकिन पैसे वहाँ गए हैं शमरॉक में। शमरॉक ये ओवरसीज और लंदन में गए थी जी, ओवरसीज कंपनी थी ये शमरॉक। जी जी, ये वही वो जो जैसे कहते हैं आजकल वो पनामा में जैसे आए हुए हैं, ये वो कंपनी। लेकिन जाहिर है आपको इन कंपनीज का कोई इनको एक्सेस तो नहीं आपको मिला, इन कंपनीज का इनके हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिली, ये कैसे आपको पता कि उन कंपनीज में ये पैसे गए थे? मैं हमारे पास जो बैंक वालों ने जो हमें रिमिटेंस इनवॉइस दी है, मेरे पास उसकी कॉपी है कि वो शमराव के अकाउंट्स में गए हैं, अलाइड बैंक लंदन में गए हैं। देखिए एक बात ये हो गई, दूसरी आप ज़हरा जी इस एक चीज़ को ध्यान में रखिए कि आजकल हम टेक्नोलॉजी के जिस एडवांस दौर में हैं, 1994-95 में तो मोबाइल फ़ोन भी शहर में एक दो आदमियों के पास होते थे और वो डब्बे वाले उठा के फेंकते थे, बड़े बड़े भारी से जी बड़े बड़े डब्बे। तो वो आप उस दौर को ध्यान में लाइए, तो उस वक्त तो हमें जो टेलीफोन लैंडलाइन कॉल्स हैं वो भी बाज़ औक़ात हमें रिक्वेस्ट करने पड़ती थी वहाँ के वो जो टेलीफोन वालों को, सरकारी महकमों को, यार ये जरा इजी कर दें, वरना वो कभी 99 नहीं मिल रहा, कभी 92, उस वक्त ये चल रही थी, ट्रंक कॉल बुक करनी होती थी। लेकिन ये बताइएगा इनामुर रहमान साहब कि आपने कहा कि ये तमाम बेनामी अकाउंट्स थे, बेनामी ट्रांजैक्शंस थी, तो आप इसको फिर किस तरह नत्थी करते हैं प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब के साथ? क्या आपके पास एविडेंस है? मैं गुजारिश कर देता हूँ, ये हुआ ऐसा है कि स्टार्ट यहाँ से हुआ कि जी वो एक सलीम ज़िया के नाम से और मोहम्मद रमज़ान के नाम से 2 अकाउंट खुल गए हबीब बैंक ज़ूरिच में। वो खुले भी कैसे, वो उसने अपने बयान में बैंक मैनेजर ने लिख के दिया कि जी वो जावेद साहब का फ़ोन आया कि जी 2 फॉरेन अकाउंट्स, जावेद ज़िया साहब का फ़ोन, सॉरी नो जावेद कियानी का, तो जावेद कियानी का फ़ोन आया उनको, मैनेजर को, कि जी ये हमने 2 अकाउंट फॉरेन अकाउंट्स को खोलने हैं। और तो जावेद कियानी थे, ये काम कर रहे थे उस वक्त कहाँ? ये एडवांस, ये वापडा हाउस में कोई इनकी कंपनियों को संभाल रहे थे ये सारा। ये हाँ, ये बाद में हमने उसको मुलजम बना के इसी मुकदमे में हमने अदालत में सबमिट किया कि ये हमारा मुलजम है। उसमें हुसैन नवाज और ये जावेद कियानी, इनका 2 का अलग चालान हमने अदालत में दिया। अच्छा, आप बात करें हुसैन नवाज साहब की, कल भी आपने जिक्र किया। देखिए 1993-94 पर तमाम वक्त हम ये कहते रहे कि हुसैन नवाज तो उस वक्त बच्चे थे, स्टूडेंट थे, क्या बात कर रहे हैं, उस वक्त तो 18 साल के होंगे, 17 साल के होंगे। तो आपने कल कहा कि हुसैन नवाज भी थे, ये भी इन्वॉल्व थे, तो अब 1993 में तो उनकी उम्र क्या रही होगी? 18 साल रही होगी, 17 साल रही होगी? मुमकिन है, मैं गुजारिश करता हूँ, मुमकिन 18 साल भी ना हो। ये आई टेल यू, हमारा कभी इनसे टाकरा नहीं हुआ, कभी हमने इनको एनकाउंटर नहीं किया। तो आप नाम क्यों लेते हैं इनका? मैं बताता हूँ, इसलिए कि हुदैबिया इंजीनियरिंग की जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनमें इनका नाम है। मरहूम शरीफ साहब का भी था, मरहूम अब्बास शरीफ साहब का भी था, तो और भी फैमिलीज जो लेडीज थी उनके नाम भी थे। तो हुसैन नवाज का नाम उस वक्त था और इसलिए आप उनका नाम लेते हैं? इसलिए उसका नाम लेते हैं कि उनके बोर्ड, उन्होंने खुद अपने उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में उनको डाला था। आपने डायरेक्टली कभी उनकी पूछगिछ नहीं की? आपका उनका कभी आमना सामना नहीं हुआ? नहीं, मेरे कोई ऑफिसर ने, फ्रैंकली मेरे पास रिकॉर्ड में नहीं है कि मेरे किसी ऑफिसर ने उनको कंसल्ट किया हो, क्योंकि मैं तो सुपरवाइज करता था ना इस्लामाबाद में बैठ के सारी तफ्तीशें। तो लाहौर से कोई ऐसा मेरे पास जो ना वो ख़त नहीं आया सरकारी तौर पर कि जी जिसमें कोई ऐसा लिखा हो कि जी उन्होंने ऑफिशियली हुसैन नवाज साहब से कोई रब्ता किया हो या उनका हुआ हो रब्ता, या वो मेरे रिकॉर्ड में नहीं है, वो मेरे रिकॉर्ड में। अच्छा, ये बताइएगा कि JIT के सामने आप कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट पेश कर सकें जिसमें आप कहें कि जी ये लिंक है प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का, ये तमाम जो मुबैन आप जो डिटेल्स दे रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि आपने कोर्ट्स में भी सबमिट किए हैं, क्या प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का कोई लिंक इनके साथ बनता है? जी, ये इसलिए कि ये सारी हुदैबिया इंजीनियरिंग मिल और हुदैबिया इसमें ये तमाम फैमिली मेंबर जो हैं ये उनके डायरेक्टर्स थे। उस हिसाब में मैं फिर अपनी पुरानी उसी बात पे कि 2 फेक अकाउंट खुल गए हबीब बैंक में, उसमें तीसरे चौथे दिन, अकाउंट खुलने के तीसरे चौथे दिन जो है ना वो $7.5 लाख के FEBCs जो है ना वो जमा होते हैं
दोनों के, उसके नाम पे 7.5 लाख डॉलर अलग, इसके नाम पे अलग। और जेन में रखिए उस वक्त डॉलर की कीमत 38 रुपए या 40 रुपए होती होगी जी। अब वो पैसे वहाँ पे जब वो चलते चलते उसमें फिर कुछ कैश भी जमा होते रहे, फिर वो कुछ बाहर भी अच्छा, ये निकलते रहे। बताइएगा, देखिए इनामुर रहमान साहब, इसमें हुदैबिया में प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब तो उसके डायरेक्टर नहीं थे, इनके बाकी इसलिए हुसैन नवाज साहब का नाम आया ना। तो आपसे मैंने यही पूछा कि आप जब नवाज शरीफ साहब का नाम लेते हैं तो आप इसलिए लेते हैं क्योंकि वो फैमिली का हिस्सा हैं, इसलिए नहीं कि किसी डॉक्यूमेंट में उनका नाम आता है? डॉक्यूमेंट में शायद डायरेक्टली मुमकिन ना हो, लेकिन मैं उसको, अब 20 साल पुरानी बात है, रिकॉर्ड मैंने उस हिसाब से गौर से पढ़ा नहीं। मुमकिन ना हो, लेकिन बेनिफिशरीज में ये आते हैं ना जहरा जी। आप देखिए कि जब एक ग्रुप जो है ना वो सारी एक्टिविटी कर रहा है, पैसे बाहर से लाखों डॉलर्स आ रहे हैं, लाखों डॉलर बाहर जा रहे हैं, शेमरॉक कंपनी में ट्रांसफर हो रहे हैं, और उसके बाद हबीब बैंक में इनके जाली अकाउंट हैं, वो हमने कंफर्म किए कि जी वो आदमी एग्जिस्ट नहीं करते, वो एड्रेस ही एग्जिस्ट नहीं करता, और बैंक वाला लिख के दे रहा है कि जी हमने इन आदमियों को कभी बैंक में देखा नहीं, कभी आए नहीं, कभी गए नहीं। उसके बाद वो पैसे जो है ना वो मुख्तलिफ, ये एक रूटीन होती है, वो कभी इस अकाउंट में गए, कभी उसमें गए, कभी उसमें गए, वो सारे इकट्ठे, ताकि वो गोलमोल मामला होता रहे। ये रिवाज है इनका। उठा के फिर उसके बाद आप सारे पैसे जो है ना वो भेज देते हैं अलाइड बैंक लंदन ब्रांच में, और वहाँ से फिर वो शेमरॉक कंपनी के नाम का अकाउंट है। तो उसके बाद वो BVI की है, जिसे ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड